Assalamu alaikum. A very good afternoon to everyone. Bismillahir Rahmanir Rahim. Sallallahu ala Muhammad. I start in the name of Allah, the most gracious, the most merciful, and peace be upon our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. This is Tirmizi Ashrafi from Association of Muslim Professionals, and I welcome you all in this informative session of employability training program on interview skills and techniques. I would now do a small presentation about AMP. AMP India Foundation is a not-for-profit organization registered under Section 8 of Companies Act 2013, Government of India, for providing voluntary social services to meet the needs of underprivileged individuals, that is, upliftment of the underserved and needy through education and vocational training, employment support, medical relief, economic empowerment, student mentorship and guidance. Employment Assistance Cell. We all are witnessing AI's success as one of the most admirable national level NGOs striving for three E's: education, employment, and empowerment. Keeping in mind AI's core objective of supporting the underprivileged, promoting education, and creating economic empowerment, AIF has had launched a special project with the name of AIF Employment Assistance Cell during its initial stages of formation. Today, it is one of the core projects of AIF. EAC activities. Our major EAC activities include, but are not limited to, job fairs, job drives, employability training programs in colleges, skill training, company tie-ups, candidate mobilization, skill development courses. Job fairs. Job fair is one of the flagship projects of AIF, and we have successfully organized 43 job fairs till date. Every job fair has a participation of minimum 50 companies and 2000 plus candidates. AIF has organized job fairs in the past in collaboration with Thane Police, Aurangabad Police, West Bengal Minority Finance Development Corporation, Andhra Pradesh State Minorities Finance Corporation, and other reputed NGOs. These government organizations and NGOs collaborate with AIF as local partners and take care of the local ground promotions in the job fair arrangements. AIF invites corporates like TCS, Asian Paints, Reliance Group, Cafe Coffee Day, McDonald's, Team Lease, Tech Mahindra, and other reputed corporates in the job fairs. Job drives. Job drives are similar to job fairs but are organized on a much smaller scale compared to job fairs. In a job drive, we typically invite only up to 2 to 3 corporates. Employability training programs. AIF's Employability Training Program, or ETP, has been developed to assist job seekers find the right job and at the right place at the right time, and to become the right fit in a present-day modern organization. Our ETP trainers are seasoned professionals who have in-depth understanding of employability training and committed to investing their valuable time, resources, and knowledge in grooming the candidates. We team up with colleges in different cities and conduct ETPs through there on a regular basis, usually once every month. Skill training, company tie-ups, and candidate mobilization. AIF has partnered with reputed skill training companies like Tata Trust, Whirlpool, Tech Mahindra Foundation, etc. We have also arranged skill training melas in Mumbai by inviting around 20 skill training companies to hire and train unskilled candidates who could not pursue their higher studies after 10th and 12th standard. Candidate mobilization. AIF has mobilized candidates for various skill development courses like AC technician, mobile repairing technician, and solar engineering under Skill India mission in centers all across India. Our achievements: 43 plus job fairs, 9 online job drives, 275 plus job drives, 6 online job drives, 220 plus employability training programs, 24 online ETPs, 100 mock interviews in colleges, 25,000 plus candidates placed in jobs.
organized 6 career fests and benefited 150,000 plus students. New initiative by AMP India Foundation. EmpowerJobs.com was launched on 6th December 2020. It's a unique job portal with comprehensive offerings introduced by AMP India Foundation for job seekers, especially those hit by COVID pandemic. Thank you very much. And now I would introduce our speaker for today, Ms. Nahida Sheikh. So, Ms. Nahida Sheikh, Ms. Nahida Sheikh is a junior architect, IGBC AP. Being an art and learning enthusiast, she wants to take forth her mentor's guidance that education is the best equitizer. Thereby, she has been involved through Creative Station, an NGO that educates vernacular medium students through creative and innovative ways about continuing education and not dropping out. Academics studies, design career seminars through online and offline mode. I would now welcome Ms. Nahida Sheikh to please carry on the session from here. Over to you, ma'am. Welcome everyone. Thank you so much, Nawaz sir, for the introduction. So I'll just share my screen. I would request everyone to please have your questions in the chat box, even if it is in between the seminar, so that at the end we can address the questions. So firstly, definitely congratulations to AMP for in such tough times of COVID, when the academics, the schools, colleges are shut down, they are going out of their way in helping out the students. So it's really a commendable job. And Alhamdulillah, I'm really glad to be a part of AMP since my graduation days. And now the topic on interview skills and techniques. When the interview with the job, students, firstly, we need to understand why an interview is conducted, and how we can go ahead and achieve that job which we are seeking for. Right now, today, every one of us needs a job for survival. And after your academics, maybe some of you may be right now in your colleges, or some may be graduating anytime soon and then coming out. Let's try to understand the one job which you are applying for. There are thousands and thousands of students or maybe applicants who are putting it. बहुत ऐसे हजारों स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं वो एक जॉब के लिए, जिसके लिए आप भी अप्लाई कर रहे हो. आप उनमें से किस तरह से अलग हो और क्यों आपको वो जॉब मिलना चाहिए, इस पर आपको फोकस करना चाहिए. आपको कंपटीशन भले ही हजारों के साथ हो, बट आपको ये याद रखना है कि आपको कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ आपके अपने साथ है. मैं अभी ये प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर देती हूँ. जब आप एक इंटरव्यू के लिए जाते हो, सबसे पहला आप खुद नहीं पहुंचते हो, आपका मैसेज नहीं पहुंचता, पर आपका एक रेज्यूम एक सीवी पहुंचता है. सीवी में एम्प्लॉयर्स कंसिडर करते हैं आपका कवर लेटर जो आप ईमेल लिखते हो, और आप उसके साथ क्या अटैच करते हो आपके सीवी में. जो आपका कवर लेटर होता है वो आपको एकदम ब्रीफ और स्पेसिफिक रखना है, टू द पॉइंट ही आपको लिखना है. उसमें आप एक्स्ट्रा पॉइंट्स नहीं लिखो, हम ऐसे थे, हमने ये किए थे, हमने वो किए थे, वो आप कवर लेटर में मत लिखो. वो आपने ऑलरेडी अपने बायोडेटा में डाल दिया जो आप आपकी ईमेल में अटैच कर रहे हो. आपका कवर लेटर एकदम क्रिस्प होना चाहिए. रिस्पेक्टेड सर एंड मैडम, या फिर अगर आप जहाँ अप्लाई कर रहे हो वहाँ के HR मैनेजर का आपको नाम पता है. फॉर एग्जाम्पल मिस्टर Nasir Ahmed. So it will be Mr. Nasir Ahmed. Dear Mr. Ahmed, I am so and so, and then your cover letter starts. Keep it brief. Only 4 से 5 लाइन ही आपको ईमेल रखना है. और ईमेल के एंड में आपका एक ईमेल सिग्नेचर होना जरूरी है. आपका पूरा नाम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, मे बी आपके 1 या 2 कॉन्टैक्ट नंबर्स. एंड यूज पॉजिटिव वर्ड्स. वो जो HR मैनेजर बैठे उन्हें हजारों एप्लीकेंट्स आते हैं. आपका सब्जेक्ट लाइन बहुत क्रिस्प होना चाहिए, क्योंकि आपका ईमेल खुलने से भी पहले वो आपका सब्जेक्ट लाइन देखने वाला. इन सब में
बेसिक चीजें जो HR मैनेजर्स नोट करते हैं कि आपका फॉर्मेट, आपका ग्रामर, आपके कोई स्पेलिंग एरर्स नहीं होने चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपने जो कवर लेटर बना दिया आपको भेजना है, नहीं, आप उससे पहले बनाओ, आपके जो एल्डर्स होंगे, मे भी आपके प्रोफेसर्स में भी आपके सिस्टर्स ब्रदर्स, उनको चेक करवाइए और फिर आप सेंड कीजिए। रेज्यूम टेलर्ड होना चाहिए। अब सीवी पर बात करते हैं। सीवी में मैंने भी अक्सर देखा है कि लोग सिर्फ लिख देते हैं आई एम सो 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 सो। सीवी का एक फॉर्मेट होता है, इफ यू नो और यू मे नॉट नो, लोग हायर होते हैं सिर्फ एक सीवी बनाने के लिए। आपका सीवी के कुछ सेक्शंस होने चाहिए। पहला सेक्शन, आप एक ब्रीफ सेक्शन, आपका मे बी फोटोग्राफ हो सकता है, ब्रीफ सेक्शन आप दे सकते हो जिसमें आपने सारे की पॉइंट्स मेंशन किए। आपका पूरा नाम क्या है, आपने एकेडमिक्स में क्या क्या डिग्रीज हासिल किए हैं, आपको अगर कोई अवार्ड मिला है, आपने पहले कौन सा डेजिग्नेशन लिया था, आपका कितना एक्सपीरियंस है, आपका सोशल वर्क में क्या एक्सपीरियंस। ब्रीफ पॉइंट फॉर्मेट में मीन्स वो एक ही पेज देख के आपके मैनेजर को पूरी जानकारी मिल जाएगी। जब आपका सेकेंड सेक्शन स्टार्ट होता है, वहां आपका डिटेल सीवी स्टार्ट होता है। मीन्स अभी पहला होगा फॉर एग्जांपल आपका एजुकेशन, तो आपने आपका डिटेल में आपका बोर्ड एग्जाम्स में आपका कितना स्कोर था, कौन सा ईयर था, कौन सा बोर्ड था, फिर आपकी डिग्री आपने कहाँ से ली है, कौन सा एफिलिएशन था, अगर आप कोई डिजाइन बैकग्राउंड से हो तो आपका थीसिस का टॉपिक क्या था। फिर नेक्स्ट सेक्शन आता है कि आपका एम्प्लॉयमेंट सेक्शन। एम्प्लॉयमेंट में अगर आपके पास 2 से 3 फील्ड्स का एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस है, फॉर एग्जांपल कि आपने कहीं राइटिंग के लिए भी काम किया था एज एन इंटर्न, और आपने कहीं पर कुछ डिजाइनिंग का भी काम किया था, तो आप वो एम्प्लॉयमेंट के सब सेक्शंस बनाओ कि मैंने डिजाइनिंग के लिए इस फॉर्म में इस पीरियड के लिए काम किया था और ये काम किया था। फिर आपका तीसरा सेक्शन आता है कि अगर आपने कोई राइटिंग्स की हो, नाउ राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों को ऐसा, आपको स्टूडेंट समझना है कि मैंने कोई पोस्ट बना दिया इंस्टाग्राम पे लिख दिया तो वो एक राइटिंग नहीं होता। राइटिंग में भी बहुत कैटेगरीज होते हैं। क्या आपने कभी अपने स्कूल कॉलेज लाइफ में कोई मैगजीन में आर्टिकल लिखा था, कहीं आप वो पब्लिश हुआ है या अनपब्लिश्ड है, कहीं पर आपने कोई न्यूज़पेपर आर्टिकल लिखा है, फिर आपने कहीं पर कोई और पेपर जो जर्नल में पब्लिश हुआ है, किसी बड़े कॉन्फ्रेंस में पब्लिश हुआ है, ये सब आपको एकेडमिक्स से ही स्टार्ट करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि जब मैं प्रोफेशनल लाइफ बनूंगी या बनूंगा तब मैं ये सब लिखना स्टार्ट करूंगा, तब तक बहुत देर हो जाती है। तब तक ऑलरेडी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने ऑलरेडी ये सब लिख के अपना रेज्यूम बना दिया, अपना करियर बना दिया। तो ये सारे, कहीं आपने कोई ब्लॉग बनाया है, आप डेली ब्लॉग्स लिखते हो, वो सारी चीजें आपको अपने सीवी में डालना जरूरी है कि आप एक्चुअली कितना आउटरीच कर चुके हो। क्योंकि आपका रेज्यूम और कवर लेटर इतना स्ट्रॉन्ग इनफ होना चाहिए कि आपकी ये आउटरीचेस, कहाँ कहाँ आप गए हो, कहाँ कहाँ आपने आउटरीच किया, कितना आपका एक्सपीरियंस रिच है, ये आपके सीवी में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने कहा, पहला स्टेप होगा आपका सब्जेक्ट ईमेल का, दूसरा स्टेप होगा आपका ईमेल का कवर लेटर, तीसरा स्टेप होगा आपका बायोडेटा का पहला पेज, और चौथा स्टेप होगा आपका डिटेल बायो। ये 4 स्टेप्स के लिए आपका पहला स्टेप होना बहुत जरूरी है। आपका सब्जेक्ट लाइन बहुत क्रिस्प होना चाहिए। टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज, थैंक्स टू द लॉकडाउन इंटरव्यूज ऑनलाइन भी होते हैं। 1-to-1 पॉसिबल नहीं है अभी, बट मे बी वी कैन ऑल हैव अ पॉजिटिव आउटलुक कि जब ये लॉकडाउन उठ जाएगा तो भी 1-to-1 इंटरव्यूज होंगे, स्क्रीनिंग होगी, फोन पर इंटरव्यू, पैनल डिस्कशन, ग्रुप होगा, ऑनलाइन होगा, वीडियो पे, टास्क रिलेटेड या टेक्निकल। इंटरव्यू में आपको कभी कभार ऐसा भी दिया जाएगा कि आपने कहा है मेरे पास, हाँ सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं रेज्यूम में आपको इन्फॉर्म करना भूल गई, जो आपके पास एक्सपीरियंस है वही लिखो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखती हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इट्स अ बेसिक नॉर्म कि वो पूछेंगे नहीं कि आपको आता है या नहीं, वो अज्यूम करते हैं कि आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आना ही चाहिए। उसमें भी आप ऐसा एक ग्राफिक बना सकते हो कि मेरा वर्ड है तो मुझे वर्ड 60% यूज करना आता है, मुझे एक्सेल 20% यूज करना आता है, मुझे पावर पॉइंट 100% यूज करना आता है, मुझे एडोब फोटोशॉप इतना % यूज करना आता है।
ये जो परसेंटेजेस आप दे रहे हो, आपको ऑनेस्ट रहना जरूरी है। रिमेम्बर, ये मुझे मेरे फर्स्ट मेंटोर ने कहा था कि जो आपके रिज्यूम में होगा वही आपके एम्प्लॉयर आपको जज करेंगे। वहां पर अगर आप बोलते हो कि मुझे ये सॉफ्टवेयर आता है और जब आप काम करने बैठते हो आपको नहीं आता है, तो वो आपका एक नेगेटिव इम्प्रेशन है। जो आप रेज्यूम में लिखते हो कि भाई मुझे यही आता है और मैं इस पर और इम्प्रूव कर सकती हूँ, ये उन्हें ये एक आश्वासन दिलाएगा, ये एक सेंटेंस आपका कि नहीं, इसे सीखने की भी चाह है, इसे आगे बढ़ने की भी चाह है। पर अगर आप वहां पर झूठ लिखोगे या गलत लिखोगे, तो रिमेम्बर, यू बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, आप अपने आप के लिए ईमानदार रहोगे। आपका काम, आपकी रोजी, सब चीजों में आपकी ईमानदारी एंड कामयाबी होगी। देन जब आपका इंटरव्यू होगा, बी श्योर आपको ये पूछना है, जब आपको कहीं से कॉल आता है या ईमेल आता है कि आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो गए हो, रिप्लाई करो कि व्हाट टाइप ऑफ इंटरव्यू यू विल हैव विद द पोटेंशियल एम्प्लॉयर। कौन से टाइप का इंटरव्यू होगा, भाई वो ग्रुप डिस्कशन होगा, वो टेक्निकल इंटरव्यू होगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कंप्यूटर बैकग्राउंड से है, तो क्या आपको कोई एक टास्क दिया जाएगा और ये कुछ मिनट्स दिए हैं, इस मिनट में ये टास्क कंप्लीट करना है, वैसा इंटरव्यू होगा, या आपके सीवी के बेस्ड इंटरव्यू होगा, या आपको कुछ प्रेजेंट करना होगा। ये पूछ के जाओ, ये होमवर्क करके जाओ। नेक्स्ट, प्री इंटरव्यू, Nahita ma'am, जब हम लोग कहते sorry to हैं, disturb you. या Really very sorry. Actually, your हाँ, voice, there's some disturbance in your voice and can't hear you properly. okay, I'll am I audible now? Yeah, you are audible, but there is some echo in your voice. It's repeating. Your voice is repeating. Okay, just a second, just give me a second, sir. Take your time. Can't hear you, ma'am. Can't hear you. We can't hear you, ma'am. Miss Nahida, we can't hear you. Is it fine now? Is it fine now? Still, there's some echo. You, ma'am, you can continue. You can continue. Please, you can continue. Yeah, because we lose out on time as well. Are you using a microphone or something? No. Okay. I mean, I use this system only, so this is only fine. Sure, I'll you can continue. I'll continue. Sure, ma'am, sure. Yeah. So, आप उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में रिसर्च कीजिए, उनकी कोई वेबसाइट, उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, कि उनका बैकग्राउंड क्या है, वो अपने एम्प्लॉइज में क्या चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कोई कनाकिया स्पेसेस बड़े डेवलपर्स हैं, अगर आप उनके वेबसाइट पर जाओगे तो आप देखोगे कि उन्होंने क्या क्राइटेरिया होना चाहिए उनके एम्प्लॉइज में, उसके लिए एक अलग पेज बनाया। तो जरूरी नहीं है कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जा रहे हो उसी पर आप रिसर्च करो। सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन से उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, उनकी क्या प्री रिक्विजिट्स, वो क्या चाहते हैं कि उनके एम्प्लॉयर्स कर सके, उस पर रिसर्च करो और अपने आप को उस तरह से प्रिपेयर करो। सेकेंड स्टेप, किनसे आपकी मुलाकात होने वाली है, उस टीम का बैकग्राउंड क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डायरेक्टर से मिल रहे हो,
डायरेक्टर कौन है, डायरेक्टर की पोजीशन क्या है, डायरेक्टर का एक्सपीरियंस क्या है, डायरेक्टर के प्लस पॉइंट्स क्या है, डायरेक्टर का बैकग्राउंड क्या है। उनके बाद जब आप फोन पर आपको जब कॉल या मैसेज आता है वहां पर पूछिए कि एडवाइस दीजिए कि आप क्या और कर सकते हैं, कितनी बेहतर तरीके से अपने इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हो। प्लान अहेड, खुद का एक होमवर्क और प्री रिक्विजिट बनाइए कि मैं और 2 से 3 सवाल क्या पूछ सकता हूँ या पूछ सकती हूँ। उस ओकेजन के लिए ड्रेसअप कीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि ऑनलाइन इंटरव्यू है, आप घर के कपड़ों में बैठोगे, नो इट्स नॉट फेयर एनफ। ये सोचो कि आप एक ऑफिस के एनवायरनमेंट में बैठे हो, ऑफिस में आपको स्पेसिफिक प्रोफेशनल होना बेहद जरूरी है। इन दैट केस इवन फॉर एग्जाम्पल आप घर के कपड़ों में बैठे हो अपने इंटरव्यू के लिए, आपने सोचा कि वीडियो तो ऑफ ही रहेगा और उसी वक्त आपके इंटरव्यू ने कहा कि आप अपना वीडियो ऑन कीजिए, यू विल बी इन द स्टेट ऑफ एम्बैरेसमेंट। तो उससे एम्बैरेसमेंट को देखने के बदले में आप पहले ही अपने माइंड को प्रिपेयर कर दीजिए, परफेक्ट ड्रेसअप, बी ऑन टाइम। अगर 3 बजे का इंटरव्यू है तो 2:50 से ही आप रेडी रहिए। डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज कीजिए, अपना फोन, अपने कंप्यूटर का व्हाट्सएप, अपने ईमेल नोटिफिकेशंस सब ऑफ कर दीजिए। यू आर इन अ प्रोफेशनल बैकग्राउंड, यू आर नो लॉन्गर इन अ स्कूल। अब आप स्कूल या कॉलेज में नहीं हो कि आपने कुछ भी कहा तो आपके प्रोफेसर्स ने कहा ठीक है बच्चे हैं हम छोड़ देते हैं। आप एक प्रोफेशनल लाइफ में स्टेप कर चुके हो एंड यू आर एक्सपेक्टेड टू बिहेव लाइक प्रोफेशनल्स। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, एनी फील्ड एंड एवरी फील्ड। पहला इंप्रेशन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, कैन आई स्टार्ट, क्या मैं स्टार्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ये एक जो क्वेश्चन होता है ना, वो आपके इंटरव्यू को ऐसा बताता है कि ये जो एम्प्लॉय आ रहा है ये हमें रिस्पेक्ट दे रहा है और ये हमसे इजाजत लेकर काम कर रहा है। ये आपके लॉन्ग टर्म करियर के लिए बहुत यूजफुल सजेशन है। गुड लक। नेक्स्ट, ड्रेसिंग अप। Unfortunately, we are in the pandemic. One-to-one meeting is not possible, but online also there are some professional के dress codes होते हैं। Dark suits, formals for male, साड़ी और सलवार कमीज for female। कोई भी piercing, tattoos नहीं होने चाहिए। Polished and closed toed shoes, minimal jewelry, conservative hairstyle. You cannot just come anyhow. Come on, you are in a professional life. No strong perfumes, well groomed, minimal makeup. Because और यहाँ पर एक और पॉइंट जो मुझे याद है, जब मैं एक स्टूडेंट थी और हम एक ऐसा ही सेमिनार अटेंड किया था इंटरव्यूज के ऊपर। उस वक्त हमारे एक नसरीन इब्राहिम मैम थे, उन्होंने हमें बताया था ये नहीं होना चाहिए कि आप पहले दिन एकदम टिप टॉप कोट पहनकर आ रहे हो और दूसरे दिन से जब आप जॉब पे जा रहे हो आप एक नॉर्मल शर्ट पहन के जा रहे हो। पहले दिन आपने किसी से बोरो करके आपने इंटरव्यू दिया है और दूसरे दिन आप अपनी नॉर्मल ड्रेस में जा रहे हो। ये एक पॉइंट से अगर आप एक नजरिए से देखें तो ये अच्छी बात है, पर एक दूसरे नजरिए से आप देखो ना तो वो बहुत अलग बात है। जो ड्रेस कोड आप मेंटेन करने वाले हो उसी ड्रेस कोड में आप अपना पहला इंप्रेशन दीजिए। एंड वही ड्रेस कोड सिंपल हो, फॉर्मल हो, जरूरी नहीं कि एकदम हाई प्रोफाइल होना चाहिए, बट जैसा भी हो प्रेजेंटेबल हो। हाउ टू शेक हैंड्स। बॉडी लैंग्वेज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमेशा इग्नोर किया जाता है। शेक हैंड, स्माइल, आई कॉन्टैक्ट। आप छोटे हो, आपको एक्सटेंड करना है आपका हैंड, वो आपसे हाथ नहीं मिलाने आएंगे। मे बी समवन वुड बी जो बहुत हम्बल होंगे वो खुद से आएंगे, पर राइट नाउ रिमेम्बर आप वो हो जिसे जॉब की जरूरत है, आप वो हो जो चाहते हो एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनने के लिए। तो आपको अपना स्टेप डाउन होके हम्बल और काइंड होना बेहद जरूरी है। एंड ये सारे प्रेजेंटेशन पॉइंट्स व्हिच आई विल स्किप मोरली बिकॉज आई वांट टू मैं फोकस कर रही हूँ अगर ये ऑनलाइन इंटरव्यू जो एट प्रेजेंट चल रहा है उसके हिसाब से। बॉडी लैंग्वेज 67% जो मैनेजर्स होते हैं उन्होंने ये कहा है कि जो वो हमसे आंख नहीं, नजर नहीं मिलाता, वो डरते हैं। आप क्यों डर रहे हो? आप एक नॉर्मल इंडिविजुअल हो
एंड जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं वो एक मैनेजर पोजीशन पे, अगर आप पहले ही दिन आई कांटेक्ट नहीं कर पाओगे तो आप अपना जॉब कैसे कर पाओगे? बी हम्बल, बी सॉफ्ट, बी पोलाइट एंड जस्ट आस्क द क्वेश्चंस। एक्स्ट्रा फिजिट नहीं करना है, हमने ये भी किया था, हमने वो भी किया था, हमने वो भी किया था, हमने नहीं, टू द पॉइंट, हमारा ये एक्सपीरियंस था, इसमें हमने ये किया था, अगर आप मुझे ये जॉब पर रखते हो, मैं ये, आप मुझसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हो और मैं ये आपको भरोसा दिला सकती हूँ या दिला सकता हूँ कि मैं अपनी आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा कर गुजरूंगा। वीक हैंडशेक नहीं होना चाहिए, स्माइल मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाँ, वी नो, हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि आप नर्वस हो, इस वक्त आपको जॉब की जरूरत है, बट उस मोमेंट में भी अगर आप स्माइल कर दोगे आप एक अच्छा इंप्रेशन दोगे। डूज एंड डोंट्स, एक ही आइटम लो, शूज काउंट, स्लाइटली एंगल्ड बैठो। यस, जब आप इंटरव्यू भी देते हो ऑनलाइन तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने पीछे अपने सीट पे, चेयर पे फोकस करके बैठ लिया। नो, जब आप थोड़ा सा बेंड होते हो तो आप ये दिखाते हो कि आप एक टीम का हिस्सा होने के लिए तैयार हो। बी कॉन्फिडेंट, कहीं पर फंबल मत करो। जो आपको नहीं समझता है, आई एम सॉरी, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस, कैन यू प्लीज रिपीट। प्लीज कहने से आप दिखाते हो कि आप पोलाइट हो और कर्टियस हो। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, अननेसेसरी स्माइल नहीं करना है, अपनी पर्स योर लिप्स नहीं करना है, कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपैंड नहीं करना। डोंट टच योर फेस एंड हेयर व्हाइल यू आर टॉकिंग, यू आर अ प्रोफेशनल। आप ये सोचो कि आप एक बड़े से ऑर्गेनाइजेशन में भी यूएन के लिए इंटरव्यू दे रहे हो, यूनाइटेड नेशंस के लिए इंटरव्यू दे रहे हो, तो आप उस लेवल की कर्टियसी मेंटेन करोगे अपने हर लेवल ऑफ इंटरव्यू के लिए, be it whatever the level the organizations. How to answer the common questions? Tell me about yourself. पहला सवाल यही होगा, प्रोफेशनल रहो। ये नहीं कि आई एम सो एंड सो, नो, आई एम एंड like I am a designer or I am an engineer or I am a professional graduate, और एक ही स्टोरी पर फोकस करो, 10-12 स्टोरीज मत लेकर, बिकॉज जो एम्प्लॉयर है वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ के साथ अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानना चाहे। कंसाइज रहो, स्पेसिफिक रहो, और जिस जॉब की पोजीशन, फॉर एग्जांपल अगर आप एक राइटर की जॉब की पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप वहां पर ये नहीं बोल सकते कि मैंने अपने प्रीवियस जॉब में वीडियोस बनाए थे। आपको ये वीडियोस बनाए थे लेकिन उससे ज्यादा आपने राइटिंग में क्या किया था, आपको वो ज्यादा बताने की जरूरत है। टॉप 10 इंटरव्यू क्वेश्चंस, आपको इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या पता है, आपको ये जॉब क्यों चाहिए। एक ऐसे सिचुएशन का एग्जाम्पल दो जब आप अपने गोल्स को नहीं अचीव कर पाए या फिर आपको बहुत डिफिकल्टी आई थी। आप अपने आपको अगले 5 सालों में कहाँ तक देखते हो, आपका करंट मैनेजर आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में क्या बोलेगा, हम आपको क्यों ये जॉब दे, और अगर आपके पास एक बड़ा ही सी प्रॉब्लम आई तो आप उसका सामना कैसे करोगे। क्या आपको टीम में काम करना अच्छा लगता, अगर आप इस ऑफिस में जॉब करना स्टार्ट करोगे तो पहली चीज क्या होगी जो आप चेंज करोगे। ये कुछ बेसिक 10 क्वेश्चंस होते हैं जो इंटरव्यूज में डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब अपने स्टार्स को प्रिपेयर करो, आप सिचुएशन, आप क्योंकि यू नो अंडरस्टैंड कि एक स्किल जब हम कहते हैं, हार्ड स्किल, सॉफ्ट स्किल, वोकेशनल स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स बहुत सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो व्हाट वाज द सिचुएशन यू प्रीवियसली फेस्ड योर एम्प्लॉयर, आपके पहले वाले जो जॉब वाले थे या आपके बॉस थे, वहाँ आपका एक अच्छा एक्सपीरियंस, बुरा एक्सपीरियंस क्या था, क्यों था। अगर आपने कोई जॉब करना नहीं स्टार्ट किया, मे बी आपके कॉलेज लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आपके पास आई हो, उस वक्त आपने किस तरह से बिहेव किया। देन टास्क, वहां पर आप टास्क क्या करते थे, आपने क्या एक्शन लिए थे, उस एक्शन का रिजल्ट क्या था। टॉप इंटरव्यू क्वेश्चन आस्क, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। नाउ मैं आप यहाँ पर सेकेंड रो पे फोकस कीजिए कि आपको क्या क्वेश्चंस पूछने हैं, आपको इस कंपनी में क्यों काम करना है, आपको यहाँ का कल्चर पसंद है, आप पहले 3 महीनों में मुझे किस तरह से जज करोगे, क्या ये पोजीशन वेकेंट है, क्या आपको लगता है कि आपके दूसरे एप्लीकेंट्स यहाँ पर काम करेंगे या कॉम्पिटिटर्स के पास, नेक्स्ट स्टेप क्या है। आंसर के वक्त आई कांटेक्ट रखो,
and avoid saying okay, I'm sorry, I cannot. Smile करो, courteous और professional रहो, and experience के ऊपर बात हमेशा करो. नेवर से कि आपका जो प्रीवियस एम्प्लॉयर था वो एक अच्छे इंसान नहीं थे या उन्होंने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया था. नेवर से दैट, क्योंकि जो एम्प्लॉयर है, जो अब आपको हायर करने वाला है, वो ये सोचेगा कि आप उनके बारे में बोल रहे हो तो आप हमारे बारे में भी बोलो. रिमेम्बर, ये एक जॉब जो उसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, इसी तरह से आप कई जॉब्स के लिए जिंदगी भर अप्लाई करने वाले हो. मे बी कहीं पर आपको लगेगा कि आपको और प्रोग्रेस करना है, कहीं पर आपको लगेगा कि वहाँ पर अपॉर्चुनिटी अच्छी है. ये इम्प्रेशन, नेवर बैकबाइट अबाउट एनीवन. वी हैव एन इनसाइड कॉन्टैक्ट, हमारे रिलेटिव की वजह से हम यहाँ पर आए हैं, हमने ऑलरेडी यहाँ के बारे में जानकारी निकाल ली है. अपना होमवर्क करो, बट बोलो बहुत कम. रिमेंबर, लेस इज मोर. जितना आप कम बोलोगे, लेट योर वर्क स्पीक. आपके काम आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करें. वैसी काबिलियत अपने आप में बनाओ. बिगेस्ट मिस्टेक्स, एक इंटरव्यू में हमेशा सब अच्छा ही नहीं होता, कुछ गलतियां भी होती है. आपके पास कोई सवाल नहीं है, आपने जो अपने कॉलेज में बुक में टेक्स्ट बुक में अपनी पढ़ाई की है, आप वही जवाब दे रहे हो. आप एरोगेंट रह रहे हो, आप लेट आ रहे हो, आप प्रिपेयर्ड नहीं हो. ये बेसिक पॉइंट्स है. आपने कोई रिसर्च नहीं किया, आप बस आ गए. ऐसा नहीं होता. सेल्फ, हम लोग को लगता है कि होमवर्क करना सिर्फ स्कूल कॉलेज तक लिमिटेड है. ऐसा नहीं है. होमवर्क करना और लर्निंग करना लाइफ टाइम है, लाइफ लॉन्ग है. Ask the following questions. Start smart. Dress code, time, location, overseas. अगर आपने यहाँ बैठे बैठे जर्मनी में इंटरव्यू दिया है तो इंडिया का टाइम क्या होगा उसका ध्यान रखो. कंपनी के डिटेल्स. स्टार्ट इंटरव्यू लोकेशन. ओके, इफ यू आर देयर, अगर आपको 10 बजे पहुंचना है, आपको 8 बजे से स्टार्ट करना होगा. प्रैक्टिकल एडवाइस. फोन ऑफ रखो. 50-50 रूल यूज करो. जितना आप सवाल दोगे, जवाब दोगे, उतने आप सवाल भी करो. लिसन. Listening is the most important rule in a professional life. Be aware of your body language. लोग आपको जज कर रहे हैं, आपको आजमा रहे हैं. आप किस तरह से बिहेव कर रहे हो, आप किस तरह से रिएक्ट कर रहे हो. एंड ऑन अ गुड नोट, ओके सर, थैंक यू. सबके कार्ड्स कलेक्ट करो, फॉलो अप करो. ऐसा नहीं कि आप अपने इंटरनेट पे थैंक यू का एक ईमेल देख लिया, वही आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो. नहीं, उस पर अपना सेल्फ रिटन करो, उससे एक रेफरेंस के तौर पे यूज करो. देयर आर सम इम्पोर्टेंट इवैल्यूएशन क्वेश्चंस कि आप स्ट्रांगली अग्री करते हो, आप अग्री करते हो, डिसअग्री करते हो, स्ट्रांगली डिसअग्री, या यू डोंट नो. हाँ, सॉरी. these are 3 questions. Navasa, I think yes, ma'am. This is the feedback. Okay, I think. Yeah, this is the feedback This is to the student. This is for the students, so you can skip that. Okay. Yeah, I'll skip that. And giving back to the society. This also you can skip. Yeah, so I'll just stop sharing. Now you know what's true. Was that हो गया? Yes, हो गया है presentation. लेकिन मैं कुछ अपना personal आपके साथ I would like to give you some. I think किसी की background sound आ रही है. Okay. स्टूडेंट्स, जो फेज है, कभी भी लाइफ में कोई एक जॉब पर रिलाई मत करना. बिकॉज लाइफ एंड जॉब्स आर लाइक अ टेबल. एक जब एक कुर्सी खड़ी होती है, उसे 4 पहियों की जरूरत होती है. उसी तरह से लाइफ में आपको हमेशा मल्टीपल जॉब्स, मल्टीपल स्किल्स की जरूरत है. आपको ये नहीं कहना चाहिए कि बस मुझे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वर्ड, एक्सेल आता है तो उतना काफी है मेरी पूरी लाइफ के लिए. नो, देयर मे बी टेंस एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल जिनको उनसे भी कहीं ज्यादा आता होगा.
सेकेंड थिंग कि मल्टीपल जॉब्स, मे बी आप एक जगह पे कुछ काम कर रहे हो, आप कहीं और भी कुछ ढूंढो, मे बी एज अ फ्रीलांसर कुछ करो, बिकॉज ये ना सिर्फ आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए होता है, बट आपको खुद को इम्प्रूव करने के लिए भी होता है। सेल्फ इम्प्रोवाइजेशन वेरी इंपॉर्टेंट कि और आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर जस्ट ग्रेजुएट्स या कुछ और। तो अगर आप सिर्फ एक ग्रेजुएट हो और आप कह रहे हो कि बस मैंने ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट कर ली, मैं इंजीनियर बन गया, मैं ये बन गया, मैं डॉक्टर हूँ, तो क्या नहीं, आपको आगे भी और पढ़ते रहना चाहिए। आपको एक प्रोफेशनल लाइफ में नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत सारे वेबिनार्स अटेंड करने चाहिए, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबरशिप्स लेने चाहिए, क्योंकि ये जो मेंबरशिप्स होती है ये ना सिर्फ आपको एक प्रोफेशनल टैग देती है, बट आपका जो नेटवर्किंग होता है, नेटवर्किंग स्किल्स मींस आपका आउटरीच, उसका मीनिंग ये होता है कि आपने मानो ये वेबिनार अटेंड कर लिया है, एंड में कुछ स्लाइड्स आ गए, कुछ कॉन्टैक्ट्स आ गए, उन लोग ने अपने ईमेल्स शेयर किए, आप उनसे टच में रहे, उन्हें कभी किसी जॉब के लिए कोई एम्प्लॉय की जरूरत होगी तो वो आपको कांटेक्ट करेंगे, या उनके कांटेक्ट में कोई होगा तो फिर वो आपको कांटेक्ट करेंगे। ये जो एक नेटवर्किंग स्किल होती है ना, आपको इनफैक्ट ये सीखना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे एकेडमिक्स में कभी हमको ये सिखाया नहीं जाता, बट जब तक हम सीखते हैं, समझते हैं, शायद देर भी हो जाती है, बट आप लोग लकी हो, ऑर्गेनाइजेशंस लाइक एएमपी आज आपको ये सब प्रोवाइड कर रहे हैं। यूज दिस टाइम इन द मोस्ट एफिशिएंट वे, आई वुड से। सो इफ एनीवन हैज एनी क्वेरीज, आप प्लीज मुझे पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी कैन वाइंड अप। तो एक क्वेश्चन दिखा है मुझे यहाँ पर, नसीर अहमद, सेल्स मार्केटिंग में काम करता हूँ, तो रेज्यूम में उस कंपनी का नाम लिख सकते हैं। आई थिंक जैसे मैंने बताया, जो सीवी होता है, एक आपको दो टाइप का सीवी बनाना चाहिए। पहला होता है आपका एक ब्रीफ सीवी, एक पेज का ही, एक पेज का सीवी में आपका जब आप एम्प्लॉय एक्सपीरियंस लिख रहे हो, कहाँ आपने काम किया है, कितने वक्त के लिए, भले ही अगर वो 1 महीने के लिए भी था, वो लिख दो। कंपनी का नाम, कितने ड्यूरेशन के लिए आपने काम किया है। जब आप डिटेल सीवी लिखते हो तो वहां पर आपने क्या काम किया है वो आप मेंशन करें। एनी अदर क्वेश्चंस? Any student? Yes, ma'am. There are no more questions in the Q&A section, but there's a personal question from a friend of mine. You can say a friend of mine, his son. He used to ask that after SSC, I want to choose a field. So, what should I do that I should be, bright in my futures, and what to do then after SSC and after HSC? After तो HSC, what can I एसएससी do? के आई एम जस्ट कमिंग टू इट कि एसएससी के बाद आपके पास 3 फील्ड्स होती है हमारे एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से, आर्ट, साइंस, कॉमर्स। बट बिफोर जंपिंग ऑन टू कि मुझे ये पसंद है इसीलिए मुझे ये करना चाहिए, आपको एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जो ऑनलाइन भी होता है और जो ऑर्गेनाइजेशंस कंडक्ट करते हैं, आपको वो एप्टीट्यूड टेस्ट देना चाहिए। उसमें उस टेस्ट बेसिक है, कोई एग्जाम नहीं, आपको कोई प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। उस टेस्ट के जरिए आपको ये पता चलता है कि आपके स्ट्रेंथ्स क्या है, आपके प्लस पॉइंट्स क्या है, और आपको कौन कौन से करियर ऑप्शंस सूट करते हैं। सेकेंड होता है आपका पैशन फॉलो करना। फॉर एग्जाम्पल, एवरीवन हैज अ पैशन। एवरीवन हैज अ पैशन कि अगर किसी बच्चे को ड्राइंग, कलरिंग करना पसंद है, तो उसने सोचा है कि उसी लाइन में उसे अपना करियर बनाना। तो उस रिलेटेड कौन कौन से फील्ड्स है, हम सिर्फ कहते हैं ड्राइंग कलरिंग है तो उसमें क्या कर सकता है बच्चा। ड्राइंग कलरिंग मीन्स डिजाइन, डिजाइन इज एवरीथिंग, फैशन डिजाइनर, प्रोडक्ट डिजाइनर, बिल्डिंग डिजाइनर, इंटीरियर डिजाइनर। फिर वहां पर उसे नेक्स्ट स्टेप डिसाइड करना चाहिए कि इस डिजाइन के फील्ड से मुझे क्या करना अच्छा लगेगा।
लगेगा वो एक बात है, बट सेकेंड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कौन सी फील्ड आपको अगले 5 या 10 सालों में जॉब दे सकती है, या फिर आप एक प्रोफेशनल बनो या आप एक जॉब सीकर बनो। ये डिसीजन आपको 10th स्टैंडर्ड में डिसाइड करना चाहिए कि अगर आप एक प्रोफेशनल बनते हो तो कल के दिन अगर आप जॉब नहीं भी करना चाहते हो, आप अपनी खुद का प्रैक्टिस, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक लॉयर किसी लॉयर के अंडर काम कर सकता है या वो अपनी खुद की प्रैक्टिस डाल सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक कोई और फील्ड का ग्रेजुएट होगा, उसे एक या तो एमएनसी करना होगा या तो उसे मास्टर्स करके कोई और फील्ड में जाना होगा। ये सारे बेसिक पॉइंट्स हैं। सो आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। नाउ मोहम्मद जावेद इज आस्किंग, मैंने एसबीआई कार्ड में 3 मंथ जॉब की है बट मुझे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तो क्या मैं ये एक्सपीरियंस शो, ये ऑफ कोर्स आपने जॉब तो की है ना, आपके पास सैलरी स्लिप्स तो होंगी, तो नो वन विल आस्क यू फॉर दैट। बट अगर वो आपको आपके नेक्स्ट एम्प्लॉयर पूछते हैं आपके पास क्या एक्सपीरियंस है, आपने जो जो काम किया होगा उसका आपके पास कोई तो एक शॉर्ट रिपोर्ट होगी, या तो आप बना लो इस मंथ में मैंने ये किया था या इस वीक में मैंने ये किया था, और आप जहां भी अपना सीवी बनाते हो आपको वो मेंशन करना जरूरी है। नाउ कमिंग टू अजय कुमार क्वेश्चन, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द लेवल ऑफ इंटरव्यू ऑफ सिविल सर्विसेज? Civil services is the most toughest exam in India. You know, I can explain you, एक experience मैं बता सकती हूँ। एक IAS ऑफिसर है, cannot recollect his name, but वो इंडिया के youngest IAS ऑफिसर्स बने थे। Let me just tell you his name. Youngest IAS officer, तो his name was Ansar Sheikh. So मैंने एक स्पेशल प्रोग्राम था जब मिस्टर अंसार शेख हिमसेल्फ वाज प्रेजेंट। उनका एक क्वेश्चन था कि उनके आईएएस ऑफिसर के एग्जाम में उन्हें क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट काइंड ऑफ अ मुस्लिम यू आर, सुन्नी मुस्लिम और शिया मुस्लिम, एंड मिस्टर अंसार शेख का आंसर था कि मैं एक इंडियन मुस्लिम हूँ। तो मैंने क्यों ये क्वेश्चन लिया है यहाँ पर कि आईएएस ऑफिसर के लेवल ऑफ इंटरव्यू कैन बी एनीथिंग, यू नो, उन्होंने अपना यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस क्रैक किया बट इंटरव्यू में उन्हें ये पूछा जा रहा है कि आप एक कौन से मुस्लिम हो, तो वो पर्सनालिटी बेस्ड होता है। द लेवल कैन बी एनीथिंग, ग्राउंड लेवल, मतलब ये सिलेबस में भी नहीं था बट ये पर्सनल लेवल पे क्वेश्चन था। लेवल कैन बी एनीथिंग, एकेडमिक्स टू प्रोफेशनल, बट व्हाट दे विल जज यू ऑन कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो और आप किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। दैट वुड बी द बेस्ट आंसर आई कुड गिव फॉर योर क्वेश्चन अजय। एनी अदर क्वेश्चन, एनीवन? No, ma'am, there are no more questions. So we'll end the session here. Okay. And thank you very much for thank you very much for your precious time, ma'am. And we look forward for such great and informative sessions again. Till then, take care. Allah Hafiz.